अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको समझना ज़रूरी है ताकि एक्सरसाइज जो है वो ईज़िली सॉल्व हो जाए। नंबर वन इज़ पार्टनरशिप। When two or more than two persons start a joint business and share the profit or the loss, the doing of joint business of this type is called partnership. तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप का मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलके एक बिज़नेस शुरू करते हैं और उसमें जो प्रॉफिट या लॉस होता है तो इस टाइप के जो बिज़नेस होता है जॉइंट बिज़नेस को उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैपिटल। द मनी इन्वेस्टेड इन द बिज़नेस इज़ कॉल्ड कैपिटल। जो पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट किया आता है उसको कैपिटल कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.8। द क्वेश्चन इज़ Zaid, Umar and Baqir started a joint business and invested 840 rupees, 900 rupees and 720 rupees respectively. They gained a profit of 1230 rupees after a year. Find each one share in the profit. जैद, उमर और बाकिर ने मिलकर एक बिज़नेस शुरू किया था और इन तीनों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी 840, 900 और 720 रुपये। उनको प्रॉफिट मिला 1230 रुपीज़ एक साल के बाद। तो तीनों का शेयर मालूम करना है। नाउ सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। टोटल प्रॉफिट इज़ 1230 रुपीज़। रेशो ऑफ शेयर ऑफ जैद, उमर एंड बाकिर 840, रेशो 900 एंड रेशो 720। ज़ीरो कैंसिल हो गया, तीनों में सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन 84, 90 और 72 की रेशो आई। डिवाइड बाय 6, उसके बाद 6 से डिवाइड किया, यानी कि रेशो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। तो द आंसर इज़ 14, 15 एंड 12। नाउ सम ऑफ द रेशोज 14, 15 और 12 को ऐड किया आपस में। बाय एडिंग द आंसर इज़ 41। Now the share of Z, ratio of Z divided by total ratio, sum of the ratio multiply by profit amount. 14 divided by 41 multiply by 1230. 1230 multiply by 14 divided by 41. The answer is 420. Therefore, share of Z is 420 rupees. Share of Umar 15. The ratio of Umar 41. Sum of the ratio multiply by profit 15 multiply by 1230 divided by 41. The answer is 450 rupees. Share of Bakr, sum ratios divided by sum of the ratio multiply by profit 12 multiply by 1230 divided by 41. The answer is 360 rupees. Therefore, share of Zaid is 420, share of Umar is 450 and share of Bakr is 360 rupees. Now question number 2. The question is Kareem invested 3000 rupees, Rahim invested 9900 rupees and Salim invested 7200 rupees in a joint business and gained a profit of rupees 885.50. Find each one share in the profit. तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें 3 पर्सन से करीम, रहीम और सलीम, और जो प्रॉफिट था वो 885.50 था। हर एक का शेयर मालूम करना। नाउ सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। प्रॉफिट अमाउंट इज़ 885 रुपीज़ 50 पैसा। रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ करीम, रहीम एंड सलीम। रेशो
is 3600, 9,900 and 7,200 rupees. सिंप्लीफाई किया इसको, डबल जीरो आ रहे थे तीनों में, कैंसिल हो गए. द आंसर इज 36, 99, 72 रेशो. Now dividing by 9 for more simplification, divide by 9. The answer is 4, 11, 8. Now sum of the ratios, 4 plus 11 plus 8, this is equal to 23. Now we have to find the share of each person. Share of Kareem, ratio of Kareem divided by sum of the ratio multiplied by profit. 4 divided by 23 multiplied by 885.50. 885 0.50 divided by 23, the answer is 38.5. Multiplied by 4, the answer is rupees 154. Therefore, share of Kareem is 154 rupees. Share of Rahim, 11 divided by sum of the amount 23 multiplied by profit 885.50. 38.5 multiplied by 11, the answer is 423.50 rupees. Therefore, share of Rahim is 423.50 rupees. Share of Salim, ratio of Salim divided by sum of the ratio multiplied by profit 38.5 multiplied by 8, the answer is 308 rupees. Therefore, share of Salim is 308 rupees. Now next question is A, B and C invested 3,000 rupees, 3,250 rupees and 3,500 rupees in a joint business. After a year, they gained a profit of 7,240 rupees. Find the share of each one. If A got 1,000 rupees out of profit money for acting as manager. यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है ए, बी एंड सी में. और इसमें एक कंडीशन ये है कि जो ए है उसने 1,000 रुपया ज़्यादा लिया है फॉर एज अ पोस्ट ऑफ मैनेजर. तो 1,000 रुपीज़ जो है वो उसने एक्स्ट्रा लिए हैं. तो इसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट में से ये अमाउंट माइनस होगी. नाउ टोटल प्रॉफिट इज 7,250 रुपीज़. रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ABC, रेशो की फॉर्म में लिखा तीनों की इन्वेस्टमेंट को 3,000, 3,250, 3,500. एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तीनों में आ रहा था तो सिंप्लीफिकेशन की. नाउ नेक्स्ट लाइन 300 रेशो 325 रेशो 350. उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो इसको चेक किया कि एलसीएम निकाल के देखा कि किस नंबर से ये तीनों डिवाइड होते हैं. तो ये 25 है, तो 25 से इन तीनों टर्म्स नंबर्स को डिवाइड किया. द आंसर इज़ 12, 13, 14. नाउ सम ऑफ द रेशोज़, अब हम रेशोज़ का सम मालूम करेंगे. 12 + 13 + 14, द आंसर इज़ 39. रेशो हमने मालूम कर लिया. उसके बाद अब यहाँ पर जो कंडीशन थी उसके मुताबिक ए गॉट आउट ऑफ प्रॉफिट 1,000 रुपीज़. तो ए ने प्रॉफिट में से 1,000 रुपीज़ ज़्यादा लिया. तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा दैट इज़ इक्वल टू 6,240. अब ये 6,240 है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट, रेशो ऑफ ए डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट 12 डिवाइड बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 6,240. सिंप्लीफाई किया, द आंसर इज रुपीज़ 1920. शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट 13 डिवाइड बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 6,240. द आंसर इज रुपीज़ 2080. शेयर ऑफ सी इन प्रॉफिट, शेयर ऑफ सी डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशो
multiply by profit, 14 divided by 39 multiply by 6240. The answer is 2240 rupees. तो इस तरीके से हमने तीनों का शेयर मालूम किया. शेयर ऑफ ए इज़ 1920, शेयर ऑफ बी इज़ 2080, शेयर ऑफ सी इज़ 2240. Now question number 4. Question number 4 is A, B, C and D invested rupees 2,875, 875 and 1,625 respectively in a joint business and gained a profit of 3,240 rupees after a year. Find share of each one if C has to get 100 rupees per month for acting as manager. तो ये आपका क्वेश्चन है. इसमें 4 पर्सन है, A, B, C एंड D. इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जो C है इसने 100 रुपीज़ पर मंथ ज़्यादा लिया एज एक्टिंग मैनेजर के, एक्टिंग एज मैनेजर. We have to find the share of each one. Profit amount is given 3,240 rupees. Yearly extra salary of C 100 rupees per month. That is equal to 100 multiplied by 12. That is equal to 1,200 rupees. Total divisible amount 3240 minus 1200. 1200 minus किया. That is equal to 2040 rupees. डिविजिबल अमाउंट आ गई. अब इसको डिवाइड करना है. रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ BBCD, रेशियो मालूम करनी है. जो इनका अमाउंट थी 2000, रेशियो 1875, 875, 1625, डिवाइड बाय 125, सिंप्लीफाई किया. द आंसर इज 16, 15, 7 एंड 13. नाउ सम ऑफ द रेशियोज. Sum of the ratio is 16, 15, 7 plus 13, that is equal to 51. Sum of the ratio is 51. Now, share of A. Ratio of A divided by sum of the ratio multiplied by profit amount. 16 divided by 51 multiplied by 2040. 2040 multiplied by 16 divided by 51, that is equal to 640 rupees. Now share of B. 15 divided by 51 multiplied by 2040. 2040 multiplied by 15 divided by 51, the answer is 600 rupees. Share of C 7. The ratio of C divided by sum of the ratio multiplied by profit amount 2040. 2040 multiplied by 7 divided by 51. The answer is rupees 280. Now in last, share of D. Ratio of D divided by sum of the ratio multiplied by profit amount. 2040 multiplied by 13 divided by 51. The answer is rupees 520. तो ये हमने क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 5.8 के. अब इसके अंदर जो बाकी क्वेश्चंस बच गए हैं वो आपने ख़ुद अपने तौर पे होमवर्क में करने हैं. तो ये आपके क्वेश्चन ये भी करने हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है.